Hello friends, I am Abhijit Vardham. I welcome you on my YouTube channel, which is started for the supply chain management professors, supply chain management students, and all interested candidates. So we just have some detailed introduction and some details about the supply chain management as an introductory video. Actually, supply chain management is a very big field, and many MBA students or BBA students, they are facing difficulties in knowing the various concept through books or internet or YouTube. There is always different information available, but at the same time, uh, it is somewhat uh, difficult to understand as per my experience is concerned. So I decided to share this knowledge with you with simple examples and actually some practical points so that everybody can be benefited with this. So basic objective of these sessions for everyone is that to share the knowledge and to get the maximum information from the content of the subject. So this is one part, and second part is that just I wanted to share some information about myself. My name is Abhijit Vardham, and having almost 20 years of experience in supply chain management in automotive industry. And I have taken a brief detailed experience in various functions of supply chain management, like planning function, like procurement function, like inventory management, MRP, that means material requirement planning, MPS, that is a master production scheduling, and other parts of the supply chain management, like logistics and distribution, a few content of distribution also. So we will not keep any barrier for the language to understand the concept. We will conduct these videos lectures in English as well as in Hindi also, and I will give you some brief details about me in upcoming videos also, so that proper knowledge can be shared with you all. So we will come to the first video for the basics of supply chain management, where just I wanted to share you some details about the supply chain management, how to understand it. हिंदी में हम बात करेंगे कि एक्चुअली सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स है, उसको कैसा हमने जानना है डिटेलिंग में जाके, उसका ब्रॉड एरिया कितना है, किधर किधर कंसेप्ट उसका लेके जा सकता है एज अ प्रोफेशनल और एज अ स्टूडेंट, और आगे जाके उसका हम लोग पूरा ब्रॉड व्यू देखेंगे. सो इस कॉम्पिटिटिव वर्ड में हमने एक देखा रहेगा कि सप्लाई चेन अभी एक जेनरिक टर्मिनोलॉजी है जो पार्लियामेंट्री डिबेट में हमने लोग यूज़ करते हैं, नहीं तो फिर एक ओवरऑल एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है अभी एक कंसेप्ट जो है वो जेनरिक है जो अभी मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं. So we will directly go to the actually concept understanding of supply chain management. So I will share you the first slide where we will have some more detailed discussion on it. So coming to the main slide of supply chain management, where this is a simple diagram. कौन सा भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप लेंगे किसी भी कंपनी का, तो इस डायग्राम में हम उसको फिट कर सकते हैं. दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. लाइक फॉर एग्जांपल, सप्लायर इज एट left side and customer is at right side. In between there is a manufacturer and distribution system. This is a basic supply chain. आप किधर भी जाएंगे तो ये बेसिक डायग्राम चेंज नहीं होगा. कुछ आपको वीडियोस मिलेंगे उसमें आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया रहेगा, बट आई थॉट कि दिस विल बी द वेरी simple diagram to understand. So I have divided this diagram into 3 sections, like first section, second section and third section. So हम इस पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट सेक्शन इज फिजिकल सप्लाई, सेकंड सेक्शन इज मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल,
and third section is physical distribution. All the three sections of the supply chain is very very important aspect of the overall supply chain subject. So we must understand it कि ये एक नंबर क्या है, दो नंबर है, तीन नंबर है, व्हाट आर दी नंबर्स आर, और उसके कंटेंट क्या क्या है वो हम बाद में जाके ब्रॉड लेवल पे जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन के कंसेप्ट, तभी ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस होगी। लेकिन ये डायग्राम छोड़ के हम लोग आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इसका अंडरस्टैंडिंग करना हर एक प्रोफेशनल ने, हर एक स्टूडेंट ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और क्या दिखाया गया है कि वन साइड सप्लायर इज देयर, अदर साइड कस्टमर इज देयर। फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर, सप्लायर से कस्टमर तक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, डोमिनेंट फ्लो ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ऐसा इधर दिखाया गया है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कस्टमर से सप्लायर तक डोमिनेंट फ्लोज ऑफ डिमांड एंड डिज़ाइन, ऐसा हमने इधर दिखाया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द फ्लोज आर। अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, तो वेरियस डेफिनेशंस आर अवेलेबल इन दिस सिस्टम इन द वेरियस बुक्स। लेकिन वो डेफिनेशन में हम लोग जब भी जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं सब सब्जेक्ट, ऐसा मुझे लगता है। तो हम लोग थोड़ा बेसिक पे जाके ही उसको धीरे धीरे जाके उसको कैसा ईजी कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। दैट इज़ वन पॉइंट। एंड नाउ इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसमें तीन डिफरेंट फ्लोज रहते हैं। ये ओवरऑल डायग्राम में आप देखेंगे तो कस्टमर से हमको डिमांड आता है पूर्ण सिस्टम में, और सप्लायर उसको सप्लाई करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज नथिंग बट द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसके कौन कौन से अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, वो हम लोग बाद में डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, फंड, ये सब फ्लो होता है ये सप्लाई चेन में। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये डायग्राम जानना था कि ये दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो अलग अलग सप्लाई चेन जो भी रहेंगे, जो हम लोग स्टडी करते हैं डे टू डे लाइफ में भी, हम लोग जब भी देखते थे भी अलग अलग सप्लाई चेन हमारे साथ में आते हैं। तो उसका हर एक सप्लाई चेन का इस डायग्राम में फिट करना और वो अंडरस्टैंड करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गोइंग फॉरवर्ड दिस डायग्राम विल बी द आवर बेस डायग्राम। सो ये डायग्राम आपने हमेशा आपके ध्यान में रखनी है। चाहिए तो लिख के आप रख सकते हैं, उसका ड्राइंग करके रख सकते हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कौन से पॉइंट पे है करके। तो वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये कंसेप्ट में हमने जैसा भी बात किया कि उसमें मेनी कंपनीज आर लिंक्ड टू इन दैट डायग्राम। इधर एक ही आपको दिखता है कि सप्लायर एक दिखा है, कस्टमर दिखा है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। इधर मेनी सप्लायर्स रहेंगे, मेनी कस्टमर्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल, लाइक टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं। टाटा मोटर्स इज अ मैन्युफैक्चरर, ही इज कमिंग इन द सेकंड सेक्शन ऑफ द डायग्राम। सो व्हाट ही इज मैन्युफैक्चरिंग कार्स एंड ट्रक्स। सो टू मैन्युफैक्चर दैट कार्स एंड ट्रक्स ही इज टेकिंग मटेरियल फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स, दैट इज अ फिजिकल सप्लाई इसमें आ गया। और वो मैन्युफैक्चर करने के बाद वो जब भी ट्रक्स और कार बनाता है तो उसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से यूज़ करके, उसका मीन्स डीलर का यूज़ करके उसको कस्टमर तक वो पहुंचाता है। दैट इज़ अ सिंपल सप्लाई चेन। लेकिन टाटा मोटर्स एक मैन्युफैक्चरर है, लेकिन उसके सप्लायर एक ही नहीं है, उसके बहुत सारे सप्लायर रहेंगे। लेटेस्ट से कि 500-1000 सप्लायर रह सकते हैं। ओके, एंड सेम कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर रहेंगे, एन नंबर ऑफ कस्टमर्स रहेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट जानना कि बहुत सारे कंपनीज उसमें लिंक होती है, और नंबर ऑफ सप्लायर है, नंबर ऑफ कस्टमर्स है, और ये छोड़ के इंटरमीडियरीज भी है, यानी जैसा होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर हम जो बोलते हैं उसको, ये सब चेन इसको बोलते हैं सप्लाई चेन। इट इज़ अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ सप्लाई चेन। लेकिन कुछ बुक्स में आप नए देखेंगे जो राइटर्स है, मैं आपको बुक्स भी बाद में सजेस्ट करूँगा कि कौन से अच्छे बुक्स है जिधर से आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है और आपका नॉलेज एनहांस हो सकता है। तो उसमें ऐसा भी कुछ लोगों ने, कुछ ऑथर्स ने बताया कि इट इज़ नॉट अ सप्लाई चेन एज अ चेन, यानी जेनरिक चेन नहीं है। इसमें ऐसा है कि ये सप्लाई चेन वेब नहीं, जो सप्लाई चेन नेटवर्क बोलते हैं, क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपके मेनी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर में हर एक, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स के इसमें जो 10 प्लांट है तो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, उसके सप्लायर भी अलग अलग है। तो ये सब एक दूसरे को सप्लाई करते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स जिगजैग स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज अ सप्लाई चेन वेब और सप्लाई चेन नेटवर्क्स।
सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि सप्लाई चेन एक प्लेन सप्लाई चेन नहीं है, एक के पीछे एक जैसा अपना ट्रेन रहेगा, वैसा नहीं है. सो दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड. ओके, सो वी विल गो टू द वन सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक कस्टमर है, समझो मैं हूँ. एज अ कस्टमर मैं बिग बाज़ार में जाता हूँ. तो बिग बाज़ार इज़ अ सुपर मार्केट, ऑल ऑफ वी आर नोइंग दैट. लाइक अपना क्या है, डी मार्ट है, वैसे एक बिग बाज़ार है. मैं जाके एक डिटर्जेंट का पाउडर उधर से डिब्बा नहीं तो जो पैकेट है उठा के लेके आता हूँ. वो मेरे लिए तो इतना ही है, लेकिन वैसा नहीं है. सप्लाई चेन में वो बिग बाज़ार का DCN डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, उधर से बिग बाज़ार को सप्लाई होता है, जिधर रिटेल स्टोर है बिग बाज़ार का. और ये समझो पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर, वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का रहेगा. तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल इज नथिंग बट द मैन्युफैक्चरर इन दैट डायग्राम. सो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का क्या रहेगा, ये बिग बाज़ार के थ्रू उस कस्टमर को सप्लाई करेगा. लेकिन ये मैन्युफैक्चर हो गया अपने इस डायग्राम में, ये मैन्युफैक्चर हो गया इधर. लेकिन उसको प्रॉक्टर एंड गैम्बल को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ सप्लायर की ज़रूरत है. जैसा प्लास्टिक सप्लायर है, पैकेजिंग का उसका सप्लायर है, उसको पाउडर बनाने के लिए कुछ केमिकल लगेंगे. तो वो ये इसका सप्लायर्स का बेस हो गए. और ये सप्लायर का इधर ही नहीं रुकेगा ये बेस. ये सप्लायर को प्लास्टिक प्रोड्यूसर है, उसके लिए उसको भी केमिकल लगेगा प्लास्टिक बनाने के लिए. सेम है टेनेक को पैकेजिंग के लिए उसको पेपर मैन्युफैक्चर लगेगा. फिर से पेपर मैन्युफैक्चरिंग को टिम्बर इंडस्ट्री से टिम्बर लगेगा. तो ये सब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अभी इधर स्टार्ट होता है. मेरे लिए तो ईजी है कि मैं जाके उधर बिग बाज़ार से आई हैव टेकन दैट पर्टिकुलर डिटर्जेंट पाउडर का मैं पैकेट लेके आया करके. बट दैट इज़ नॉट द केस. बिहाइंड दैट देर इज़ अ complete chain which is interlinked to the complete system, and that is delivering the product to the final customer which is me. So this is the one simple example to understand. मैंने आपको ये इधर बताया है. I think this will clear the your first diagram that मैन्युफैक्चरर क्या है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उसके सप्लायर कौन से है, और मैं कस्टमर हूँ, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी अपना बिग बाज़ार का शॉप हो गया. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द सप्लाई चेन, जो हमने एग्जाम्पल लेके उसका सॉल्व करने की कोशिश की. समझ गया? तो आगे चलते हैं. उसमें फ्लोज मैंने जैसा बताया आपको कि वो सप्लाई चेन का एक डायग्राम एक ठीक है, लेकिन उसमें फ्लोज रहते हैं कि एक प्रोडक्ट भी फ्लो होता है, फंड्स भी फ्लो होते हैं, यानी पैसा फ्लो होता है, इन्फॉर्मेशन भी फ्लो होता है कस्टमर्स तक. लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इसमें टैक्ट ऐसी है कि इसमें दोनों में भी पर्टिकुलरली दोनों तरफ से उसका एरो दिखाया है ये डायग्राम में. So that is one important factor, because ये प्रोडक्ट, फंड्स और इन्फॉर्मेशन बोथ साइड से फ्लो होती है. लेकिन इसमें एक अच्छा इन्फॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं एज अ सम मोर डिटेल करके. ये इन्फॉर्मेशन है, इसका इंडिपेंडेंट फ्लो है. ये तो फ्लो होती रहती है कि डिमांड कितना है कस्टमर का, सप्लायर का कैपेसिटी कितना है, कितना डिमांड आगे जाके आएगा, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन में इंडिपेंडेंटली फ्लो होती रहती है. लेकिन प्रोडक्ट एंड फंड्स ये एक दूसरे के ऊपर है, डिपेंडेंट है. ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है. कैसा? फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट अपना फर्स्ट डायग्राम पे हम लोग देखते हैं, प्रोडक्ट सप्लायर से लेके कस्टमर तक जाएगा, लेकिन पैसा कस्टमर से लेके सप्लायर तक आएगा. प्रोडक्ट लेफ्ट से राइट जाता है तो मनी राइट से लेफ्ट आता है. सेम है, समझो प्रोडक्ट कस्टमर से लेके सप्लायर तक आता है, यानी राइट से लेफ्ट आता है, तो मनी लेफ्ट से राइट जाएगा. फॉर एग्जांपल ये इंटरेस्टिंग है जानना कि सप्लाई चेन में सिर्फ ऐसा नहीं कि बाबा इधर से इधर जाता है करके. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूजुअली फ्लोज, ऐसा उसको हम बोल सकते हैं. हम लोग ये एग्जाम्पल लेते हैं, घर में हमारे LPG के सिलेंडर्स रहते हैं फॉर एग्जांपल. तो उसमें क्या होता है कि ये जो सिलेंडर्स है वो कस्टमर तक हम लोग पहुँचाते हैं, और उसके बाद एम्प्टी सिलेंडर कस्टमर फिर से पीछे लेके, कस्टमर से लेके वो सप्लायर तक फिर से रिफिलिंग के लिए जाते हैं. दैट इज़ द रिवर्स फ्लो ऑफ द सिस्टम. तो ऐसा भी होता है सप्लाई चेन में कि दोनों तरफ से वो प्रोडक्ट का फ्लो चलता है. तो तभी ये प्रोसेसेस डिफरेंट है. फिर ये इधर से उधर जाएगा तो पैसा राइट से लेफ्ट आएगा, वाइस वर्सा. सो दैट इज़ वन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट. सो दीज आर द 3 डिफरेंट फ्लोज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और सिंपल एग्जांपल्स लेके फिर हम उसको कंक्लूड करते हैं कि बाबा क्या है, अलग अलग सप्लाई चेन क्या है. तो इसका थोड़ा सा हम लोग एक उसका एक बोलते हैं फ्लेवर ले लेते हैं. लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट आपको सबको मालूम है, ये ई रिटेलर बिजनेस करने वाले स्टोर्स हैं. ये लोग ई रिटेलिंग करते हैं, यानी कस्टमर उनके फिजिकल शॉप में किधर नहीं जाते, वो ऑनलाइन हम लोग उसको परचेस करते हैं मोबाइल लेके, राइट. सो उसको बोलते हैं ई रिटेलिंग स्टोर.
तो ये चेन में एक इधर आ गए, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले लोग हैं जिनका फिजिकल स्टोर नहीं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं मैन्युफैक्चरर से लेके, समझ गए। तो ये एक टाइप के कुछ प्लेयर्स है। एज ए एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कौन कौन से सप्लाई चेन हम लोग कर सकते हैं। बिग बाज़ार हमने जैसा भी एक एग्जांपल में बताया, ये फिजिकल रिटेल स्टोर है, हम लोग इधर जाके खरीदते हैं। लेकिन अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में जाके नहीं खरीदते, हम लोग ऑनलाइन खरीद लेते हैं प्रोडक्ट, हमारे इसमें डायरेक्ट वो आ जाता है घर में, करेक्ट। लेकिन इस केस में वैसा नहीं है, बिग बाज़ार में हमको जाना पड़ता है, डीमार्ट में हमको जाना पड़ता है, समझ गए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन अमूल मिल्क का जो है, गुजरात का जो अमूल मिल्क है, उसका सप्लाई चेन स्टडी करने जैसा सप्लाई चेन है, उनका पूरा सिस्टम है, यानी इन द सेंस उनके फार्मर्स, उनका पूरा प्लानिंग, उनका मिल्क कलेक्शन के बाद स्टोरिंग दैट मिल्क, उसका प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड देन सप्लाइंग दैट प्रोडक्ट टू द फाइनल कस्टमर, ये सब उसके पैरामीटर्स है। ये सब पैरामीटर्स पूरे कवर करता है अमूल मिल्क करके, और वो सबसे इन द सेंस वन ऑफ द बेस्ट सप्लाई चेन रिकॉग्नाइज एज अमूल का जो सप्लाई चेन है करके। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जस्ट आई वांटेड टू शेयर विथ। और एक एग्जाम्पल लेते हैं टाटा मोटर्स का सप्लाई चेन, जैसे हमने बताया, कार मैन्युफैक्चरर, उसके सप्लायर, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर कस्टमर को मिलता है करके। सेम प्रोसेस इधर भी आ गए। वन बेस्ट एग्जाम्पल है मुंबई का डब्बा वाला, जिसको हम बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ 6 सिग्मा का उसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, आपको मालूम रहेगा, आप यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। मुंबई का डब्बा वाला क्या करता है, आपने देखा रहेगा, वो भी सप्लाई चेन का एक पार्ट है, लेकिन डायग्राम पे देखेंगे तो कैसा हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। ही इज़ नॉट मैन्युफैक्चरर, वो सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर यानी खाना जो बनाते हैं लोग, उसको लेके वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज़ करता है और कस्टमर को पहुंचाता है वो डब्बा, उसका जो लंच बॉक्स। इसमें आप देखेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काम करता है, लेकिन वो ट्रेन का यूज़ करता है, लोकल ट्रेन, उसको बहुत सस्ता पड़ता है। उसके ऊपर भी बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिलेगा, यू जस्ट स्टडी दैट फॉर योर नॉलेज। बिकॉज डब्बा वाला जो है, उसको इंग्लैंड का राजा भी आके इधर मिल के गया है कि उसका जो 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन के लिए वो लोग कैसा मैनेज करते हैं, उनका सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा स्ट्रांग है, वो लोग क्या यूज़ करते हैं, जिससे तरीके से उसने वो सिस्टम में वैल्यू ऐड किया है, और ट्रेन जैसे एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करके उसने कस्टमर तक कैसा वो सर्विस उसका पहुंचाया है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, और उसमें बहुत सारा आपको नॉलेज भी मिलेगा। इसमें क्या है, मुंबई के डब्बा वाला का थोड़ा सा और बात करते हैं। उसका प्रोसेस कैसा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, वो 9 बजे 9:30 बजे उसका जो कोई फिक्स टाइमिंग है हर एक कस्टमर का, उधर उनके बंदे जाते हैं, दे आर कलेक्टिंग देयर टिफिन्स फॉर ऑफिस पर्सन, एंड दे आर कलेक्टिंग दैट टिफिन्स। एक बंदा आई थिंक 30-35 टिफिन्स कुछ कलेक्ट करता है, और उसको वो साइकिल नहीं तो जो उसके हाथ गाड़ी जिसको बोलते हैं, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसका है, वो यूज़ करके वो ट्रेन से उसको पहुंचाता है। 12:30-1 बजे तक, 12:30-1 बजे के टाइमिंग तक वो ऑफिस में वो डब्बा बराबर पहुंचा देता है, लंच का बॉक्स जो रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम वो बॉक्स पहुंचाने के बाद वो रिवर्स लॉजिस्टिक भी करता है। एक बार खाना खाया वो बंदे ने, तो फिर वो 3-3:30 बजे से फिर से उसका कलेक्शन करते हैं, उसको रिवर्स लेके आता है, यानी कस्टमर से लेके फिर से उसको पीछे लेके आता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सप्लाई चेन मुंबई का डब्बा वाला। उसके ऊपर बहुत सारे केस स्टडीज़ भी है, और आप उसका थोड़ा डिटेल लेंगे तो उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे एजुकेटेड लोग नहीं है जो इनको ट्राई कर रहे हैं, जो लोग ऑपरेशंस में काम करते हैं, वो लोग सिंसियरिटी से, इन द सेंस सर्विस कस्टमर को कैसी दी जाए उसके ऊपर पूरे फोकस करके काम करते हैं। तो सप्लाई चेन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू कम्प्लीटली फोकस ऑन द कस्टमर सर्विस, कि हाउ वी कैन ऐड द ओवरऑल वैल्यू इन द सिस्टम। उनको वो मालूम नहीं कि क्या है उसका डिटेलिंग, वो जो ऑपरेशंस में काम करते हैं, उनके टॉप वाले जो लोग रहेंगे उनको डिटेल नॉलेज रहेगा उसका। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बिग सप्लाई चेन सक्सेस फैक्टर फॉर मुंबई का डब्बा वाला। सेम है डोमिनोज पिज़्ज़ा, हमने आपको मालूम है, जस्ट टू टेक अ एग्जांपल ऑफ दिट। डोमिनोज पिज़्ज़ा में क्या है, आप लोग उसको ऑर्डर देते हैं, वो मैन्युफैक्चरर ने आपको जैसा टॉपिंग चाहिए, क्या चाहिए, उसके ऊपर वो मैन्युफैक्चर करके उसको, उनके जो डिलीवरी बॉयज़ है उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम कंपेयर करेंगे वो डायग्राम में, तो उसको बराबर आपके पास वो पहुंचा देता है करके। सो दिस इज़ दी ओवरऑल प्रोसेस ऑफ दी कंप्लीट सप्लाई चेन ऑफ दिस डिफरेंट कंपनीज। इसमें हम लोग डिटेल जाके उसका पूरा परिचय करके लेंगे कि व्हाट इज़ इट, उसका टेक्निकल एस्पेक्ट भी हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन क्या है,
जब तक हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग करके पूरा सप्लाई चेन क्या है उसके अलग अलग पैरामीटर जब तक सीखते नहीं है, तब तक हम लोग उसका ब्रॉड लेवल पे जाके स्टडी नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड इट, बिकॉज उसमें आप लोग जिनको उस पर ज़्यादा नॉलेज रहेगा उनको मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने नेटवर्क प्लानिंग करके एक कंसेप्ट है, नेटवर्क प्लानिंग, नेटवर्क डिज़ाइन, लोकेशन फाइंडिंग, किधर कौन सा फैक्ट्री किधर लगाने का है, डीमार्ट ने किधर अपना शॉप खोलना है, बिग बाजार ने किधर खोलना है, उसके पीछे कुछ साइंस है। वो साइंस है ना, वो टॉप लेवल का सब नॉलेज है, लेकिन उसमें जाने के लिए अपने को थोड़ा पहले सब बेसिक स्टडी करना पड़ेगा उसका सप्लाई चेन का। और जिसका जिसका इंटरेस्ट रहेगा हम लोग धीरे धीरे जाके एक एक कंसेप्ट लेके जाएंगे। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, ये जो पहला डायग्राम है मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, यू शुड अंडरस्टैंड, एवरी स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड, एवरी प्रोफेशनल शुड नोट दिस डायग्राम, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल के ऊपर ये सेक्शन जो सेकंड, उसके ऊपर एक पूरा बुक लिखा है, फॉरेनर जो ऑथर्स है उसके ऊपर पूरा बुक लिखा है, 500 600 पेजेस का एक एक बुक इसके ऊपर है। फिजिकल सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या है इसमें, इसके ऊपर पूरे सब डिटेलिंग में हम लोग जाएंगे। लेकिन हम लोग पहला फोकस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल के ऊपर इन कमिंग लेक्चर्स, and then we will cover all the different topics of the supply chain management, because my objective is that ki you should understand the basic thing, whatever I have already told at the start of the video. But जब आप लोग जब भी इसका स्टडी करेंगे और इसका नॉलेज लेंगे, फिर जाके फिर आपको उसमें ये पता चलेगा कि उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए सिस्टम में। टेक्निकल समझो, आपको जॉब करने वाले कुछ प्रोफेशनल्स ये जो लोग रहेंगे, नहीं तो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ प्रोजेक्ट्स करने हैं, कुछ लोग नए ज्वाइंस होते हैं कंपनी में, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में उनको जॉब मिलता है, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि ईजिली अवेलेबल मैं आपको करके दे सकता हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ओवरऑल सप्लाई चेन कंसेप्ट। दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो, वी विल गो इन डिटेल फॉर दी वेरियस अलग अलग पैरामीटर जो भी है उसके ऊपर हम लोग बाद में जाएंगे। लेकिन हो सके आपको ये कुछ अलग क्वेश्चनिंग आपके रहेंगे, कुछ कंसेप्ट आपको चाहिए किसी लोगों को कि पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट्स को, तो आप मुझे, मैं आपका डिटेल मेरा शेयर करूँगा आगे जाके, तो उसमें आप मुझे लिख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो उसका हम लोग अलग अलग वीडियो में आपको मैं सिंपल तरीके से हम लोग कैसा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं वो देखेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे, और फिर हम हमारा खुद का, मेरा भी उसमें नॉलेज बढ़ेगा और आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी फर्स्ट lecture of the supply chain concept. So I hope you have enjoyed it very well, and आपको ये अच्छा लगा रहेगा, तो हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे और धीरे धीरे आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स।